Hello, dear students, good morning. Students, let's start reading the next part, and it would be the last part of this chapter. Okay, from this passage. So, imagine many world pictures. In one world, the electron is found here, in another, it is over there, in yet another, it is in a still different location. Once the observer finds where it is, we know which world we are talking about, but all those alternative worlds could exist just the same. Rajendra paused to marshal his thoughts. So imagine many world pictures. Okay. Rajendra told Professor Gaitonde Gangadhar Pant that he should imagine many world pictures. What kind of world had been in the past and what kind of world has been in the present. In one world, the electron is found here. When one starts imaging different kinds of world pictures, so he finds that the electron is found here. One electron is found here. In one world, the electron is found here. In another, it is over there. Okay. And in yet another, it is still different. It is in a still different location. So these the three statements better tell us that there is no particular location. There is no exact location of the electron which is fired from a source, since there has been no fixed determination. So due to the lack of determinism, okay, it all happens because the physicists have not decided the speed, the velocity, the speed and the distance of the same electron. They have not given the exact location to these all electrons. तो यहाँ वो कहना ये चाहता है कि इमेजिन मैनी वर्ल्ड पिक्चर्स राजेंद्र देश पांडे ने अपने साथी प्रोफेसर गायटोंडे महोदय को ये कहा, इसलिए बहुत सारे विश्व की तस्वीरों, विश्व के परिदृश्य जो हैं, अनेकानेक विश्व के जो परिदृश्य हैं उनकी कल्पना करें. जब आप इस प्रकार से विश्व को एक अलग अलग अंदाज में देखोगे तो आपको लगेगा कि विश्व की एक ऐसी दुनिया है जहां इलेक्ट्रॉन यहीं आसपास मिल जाता है. किसी एक दूसरी दुनिया में आपको वह कुछ दूरी पर जाकर के मिलेगा. इट इज ओवर देयर का मतलब कुछ आगे, कुछ दूरी, कुछ डिस्टेंस कवर करके वो इलेक्ट्रॉन आपको गिरा हुआ मिलेगा. जब इन येट अनदर इट इज इन अ स्टिल डिफरेंट लोकेशन. और एक तीसरी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो इलेक्ट्रॉन कहीं और जाकर के तीसरी जगह पर आपको अन्य स्थान पर गिरा हुआ मिलेगा. वंस द ऑब्जर्वर फाइंड्स where it is. When a person who is searching for the electron which has fallen, okay, away or very near, okay, it doesn't matter, but when the observer finds the exact location of the fired electron, जब उस ऑब्जर्वर को वह इलेक्ट्रॉन, जिस इलेक्ट्रॉन को छुड़ाया गया था, आग लगाई गई थी, जिस इलेक्ट्रॉन को जलाया गया था, वो इलेक्ट्रॉन जो विस्फोट होकर के कहीं गिरा है, और जब उसकी एग्जैक्ट लोकेशन को उसको पता चल जाता है तो उस लोकेशन को मेजर कर सकता है, उस लोकेशन की मेजरमेंट कर सकता है. सपोज जस्ट इमेजिन यहाँ कोई चीज़ रख कर के और उस इलेक्ट्रॉन को फायर किया जाता है और वो गिरता है मान लो 1000 मीटर की दूरी के ऊपर. तो 1000 मीटर की दूरी पर उस ऑब्जर्वर को, उस फाइंडर को मिलता है वो इलेक्ट्रॉन. तो जहाँ से उसको फायर किया गया था वहाँ से लेकर जिस जगह पर वो गिरा है, उसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ उसको गिरा हुआ देखा गया है,
वहाँ तक की जो दूरी है वो 1000 मीटर की है। जस्ट इमेजिन। तो अब 1000 मीटर की दूरी, अब उस ऑब्जर्वर को पता चल गया कि इस इलेक्ट्रॉन की जो मारक क्षमता है वो 1000 मीटर तक की है। वंस द ऑब्जर्वर फाइंड्स वेयर इट इज, we know which world we are talking about. It is very clear. When the observer, when the finder notices it, finds it out where the electron has finally has finally reached, has finally fallen down. So we will be able, that not only that the observer, but we all will be able to know what kind of electron it is. What kind of electron it is means which kind of world we are talking about. हम आखिरकार कौन सी दुनिया की बात कर रहे हैं, यदि हमने प्रैक्टिकली उस दुनिया को देखा है तो हम फिर उसके बारे में खुल करके बता सकते हैं. बट ऑल दोज अल्टरनेटिव वर्ड्स कुड एग्जिस्ट जस्ट द सेम. राजेंद्र paused to marshal his thoughts. The word marshal stands for here to give some more diet. I mean to say, diet stands for here to give some more strength, to give some more, to encapsulate his thoughts. अपने विचारों को और थोड़ा ज़्यादा खुराक देते हुए, अपने विचारों को और थोड़ा सा अच्छे से ढंग से पॉजिटिव फॉर्म में सोचते हुए, अपने विचारों को थोड़ा सा बढ़िया तरीके से एक्सप्रेस करने के लिए उसने अपने आप को रोका. राजेंद्र देशपांडे ने बातचीत करते हुए उसने कहा कि बट ऑल दोज अल्टरनेटिव वर्ड्स कुड एग्जिस्ट जस्ट द सेम. लेकिन ये जितने भी अलग अलग वैकल्पिक किस्म की जो दुनियाएं हैं वो सभी अलग अलग किस्म के जो लोकेशंस जो मिली है इलेक्ट्रॉन्स की, वो एक जगह भी हो सकती है. उनको यदि फिक्स्ड एक डिटर्मिनेशन के साथ में सेट किया जाता है, उनकी एक पर्टिकुलर पोजीशन बना के रखी जाती है. बट इज देयर एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन दोज मैनी वर्ल्ड्स? प्रोफेसर गायटोंडे आस्क्ड. नाउ प्रोफेसर गायटोंडे, हु वाज ए कीन लिसनर एंड विलिंग लिसनर, who was not only keen but a willing listener, who had listened to each and every word as spoken by Rajendra Deshpande, he finally asked Rajendra Deshpande whether he could tell him that there was any contact between those many worlds. उसने कहा कि इस प्रकार की तुमने अलग अलग दुनियाओं की विचित्र स्थितियों का तुमने मेरे सामने जिक्र किया है मेरे दोस्त, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि उनके बीच में क्या कोई संबंध भी है, कोई रिलेशन है? यस एंड नो. इमेजिन टू वर्ल्ड्स, फॉर एग्जाम्पल. दिस इज द रेस्पॉन्स एज गिवन टू प्रोफेसर गायटोंडे बाय राजेंद्र देशपांडे. उसने कहा जी हाँ, हो भी सकता नहीं भी हो सकता. ही रेस्पॉन्डेड बोथ इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव यूजिंग द वर्ड्स यस एंड नो. इमेजिन टू वर्ड्स, उसने कहा बस आपका काम है कि दो प्रकार की अलग अलग दुनियाओं की कल्पना करना. जरा देखें, उसमें एक सिमिलरिटी बनाने का प्रयास करें, उनके बीच में एक आपस में कोरिलेशन बनाने का प्रयास करें. आज से 50 वर्ष पहले जो हुआ था उसको आज के समय से जोड़ेंगे तो कुछ चीज़ें ऐसी जो आपको सिमिलर फॉर्म में नजर आएंगी, कुछ चीज़ें ऐसी जो सिमिलर फॉर्म में नजर नहीं आएंगी. इमेजिन टू वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर उसने कहा इन बोथ an electron is orbiting the nucleus of an atom. In both an electron is orbiting. When you will find the position of an electron, so you will see that the electron is orbiting, around the nucleus of an atom. The nucleus means the tiniest part which is placed, which is put, which is adjusted in an atom bomb. उसने कहा कि किसी एक एटम बम के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ अपनी परिक्रमा लगाता हुआ आपको एक इलेक्ट्रॉन नजर आएगा, और वो हर प्रकार की स्थिति में आपको नजर आएगा. इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जो होती है वो अपनी पर्टिकुलर पोजीशन के साथ में बनी होती है, वो वहाँ पर आपको रखी हुई मिलेगी. Like planets around the sun, Gangadhar Pant interjected means बेटा here spoke और cut in होता है वैसे प्रीपोजिशन वर्ड. किसी के बीच को, किसी की आवाज़ को, किसी की बातचीत को, कही जाने वाली बातचीत के बीच में कुछ बोलना. interrupted the voice of the speaker, ऐसा हम कह सकते हैं. और added some comment in the conversation in the voice
ऑफ सम स्पीकर, किसी भी व्यक्ति के द्वारा बोली जाने वाली आवाज़ में कोई अपनी टिप्पणी जोड़ देना, उसके लिए इंटरजेक्टेड करना। गंगाधर इंटरजेक्टेड, बीच में गंगाधर पंत कुछ बोल उठे। उन्होंने कहा लाइक प्लैनेट्स अराउंड द सन, कहा कि मेरे दोस्त, ओके, वाइल एड्रेसिंग राजेंद्र देशपांडे ही टोल्ड हिम दैट ही वाज टेलिंग हिम समथिंग अबाउट द प्लैनेट्स विच ऑल्सो, ओके, आर ऑर्बिटिंग अराउंड द सन। कहा कि ठीक बिल्कुल उन ग्रहों की तरह से जो ग्रह सूर्य की चारों तरफ परिक्रमा लगाते रहते हैं। नॉट क्वाइट, बट राजेंद्र देशपांडे वॉज नॉट सेटिस्फाइड टू द स्टेटमेंट मेड बाई प्रोफेसर गायटोंडे। लेकिन राजेंद्र देशपांडे का नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। उन सभी ग्रहों की तरह से नहीं, जो ग्रह सूर्य के चारों तरफ अपनी परिक्रमा लगाते रहते, बिल्कुल वैसा ही नहीं है सब कुछ। नॉट क्वाइट, वी नो द प्रिसाइज, प्रिसाइज मीन होता है एग्जैक्ट के लिए होता है, शार्पली एग्जैक्ट। ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है, ट्रेजेक्ट्री मीन्स पैसेज होता है वैसे तो, लेकिन यह लोकेशन के लिए भी लगा सकते हैं, पैसेज या लोकेशन। वी नो द प्रिसाइज ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्लेनेट, वो कहता है कि हमें पता है। वी द साइंटिस्ट, वी all human beings know, and we have really got the clues about the exact location, exact passage। लोकेशन नहीं कहेंगे, पैसेज बोलेंगे। पैसेज का मतलब रास्ता होता है, पाथ। ट्रेजेक्ट्री मीन्स पाथ भी लगा सकते हैं आप, PATH, पाथ। कहा कि प्लैनेट्स जो होते हैं, प्लैनेट्स के हम प्लैनेट्स नहीं, एक प्लैनेट जो होता है, एक ग्रह जो होता है, उसके हमें सही मायने में उसकी एग्जैक्ट जो उसका पैसेज होता है घूमने का, उसका जो रास्ता होता है, उसकी परिक्रमा लगाने का, जो उसकी परिधि के चारों तरफ जो घूमता है, तो उसकी हमें लोकेशन का, उसकी अपनी एग्जैक्ट पोजीशन का पता है, उसका सही मायने में उसके रास्ते के बारे में सभी लोग जानते हैं। द इलेक्ट्रॉन कुड बी ऑर्बिटिंग इन एनी ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्पेसिफाइड स्टेट्स। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कहता है कि एक बिल्कुल ठीक रखी हुई, एक स्थित की हुई, एक फिक्स की हुई, स्पेसिफाइड स्टेट्स का मतलब होता है उचित जो अवस्था होती है, उस उचित अवस्था के अंदर बेटा वो कहता है इन एनी ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्पेसिफाइड स्टेट्स। तो इलेक्ट्रॉन की कोई पोजीशन के बारे में, उसके अपने डायरेक्शन के बारे में कहता है कि कोई विशेष रूप से डिटर्मिनिज्म नहीं किया गया है, निर्धारण नहीं किया गया है। इसलिए हम किसी इलेक्ट्रॉन को लेकर के ये नहीं कह सकते कि वो अपनी एक निश्चित रास्ते से होकर के, निश्चित एक पैसेज से होकर के वो अपने न्यूक्लियस के चारों तरफ परिक्रमा लगा सकता है। दीज स्टेट्स में बी यूज टू आइडेंटिफाई द वर्ल्ड। वो कहता है कि बिल्कुल जैसे कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, इलेक्ट्रॉन का पैसेज जो होता है, इलेक्ट्रॉन का मार्ग जो होता है काम करने का, वो अलग अलग हो सकता है अपने भ्रमण करने का, परिक्रमा लगाने का, ठीक वैसे ही वो कहता है ये हमें विश्व को पहचानने के लिए ये दोनों की दोनों जो अवस्थाएं होती हैं, ये हमारी बहुत अच्छे ढंग से मददगार साबित हो सकती हैं। These states may be used to identify the world। इन दोनों अवस्थाओं का प्रयोग हम विश्व को जानने के लिए, विश्व को पहचानने के लिए कर सकते हैं। इन स्टेट नंबर 1 वी हैव द इलेक्ट्रॉन इन स्टेट ऑफ हायर एनर्जी। पहली स्टेट के अंदर हमने एक इलेक्ट्रॉन लगाया, वो ऊंची, बहुत ज़्यादा ऊंची ऊर्जा के ऊपर लगाया, बहुत ज़्यादा ज्वलनशील जो ऊर्जा होती है उसके ऊपर हमने उसको रखा। ओके, इन स्टेट नंबर 2 इट इज इन स्टेट ऑफ लोअर एनर्जी। लेकिन कहता है कि स्टेट नंबर 2 में हमने उसको क्या कर दिया, उसको उससे कम, ज़्यादा ताप वाली नहीं, ज़्यादा हायर एनर्जी में नहीं लगा, लेकिन लोअर एनर्जी में रख दिया। इट कैन मेक ए जंप फ्रॉम हाई टू लो एनर्जी। तो जब हम इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार की स्थिति में रखेंगे तो क्या करेगा, हायर पोजिशन, हायर एनर्जी के साथ में लगाया तो क्या करेगा, हायर टू लो एनर्जी की तरफ जाएगा। एंड सेंड आउट ए पल्स ऑफ रेडिएशन, और एक रेडिएशन का एक पल्स भी वो भेजेगा। ओके, एंड सेंड आउट ए पल्स ऑफ रेडिएशन, और ए पल्स हाई टू ऑफ रेडिएशन कैन नॉक इट आउट ऑफ स्टेट नंबर 2 इनटू स्टेट नंबर 1। और जो झटका है उसका, अपना रेडिएशन का जो झटका लगता है, वो कहता है उसको स्टेट नंबर 2 से स्टेट नंबर 1 में भी वापस उसको गिरा सकता है, ला सकता है। सच ट्रांजिशन आर कॉमन इन माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स। इस प्रकार के जो बदलाव होते हैं, ट्रांजिशंस का मतलब बेटा बदलाव के लिए होता है चेंज ओवर, जिसको कहा जाता है। ओके, चेंज ओवर, ट्रांजिशंस। वो कहता है कि छोटे स्तर के जो सिस्टम्स होते हैं उनमें तो ये सब चीज़ संभव होती है, सामान्य होती है। व्हाट इफ़ इट हैपेंड ऑन ए मैक्रोस्कोपिक लेवल, राजेंद्र सेड। लेकिन राजेंद्र ने कहा कि देखो गंगाधर पंत, देखो प्रोफेसर गायटोंडे महोदय, कि जब बड़े स्तर के ऊपर इस प्रकार का कोई परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, स्थिति बदलती है कोई बहुत बड़े स्तर पर कोई इस प्रकार की, तो फिर क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। आई गेट यू, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। आई गेट मीन्स आई अंडरस्टैंड यू। यू आर सजेस्टिंग दैट आई मेड ए
transition from one world to another and back again? Gangadhar Pant asked. Gangadhar Pant asked Rajendra Deshpande whether he could tell him that he was right or wrong, since he told him that he understood him. He understood him. Okay, very nicely. वो कहता है कि मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ. You are suggesting that I made a transition from one world to another and back again, Gangadhar Pant asked. गंगाधर पंत ने पूछा कि मुझे लगता है कि शायद तुम मुझे इस प्रकार का सुझाव दे रहे हो कि भाई मैंने जो है ना एक दुनिया से दूसरी दुनिया में अपना रास्ता बदला, अपने आप को मैं लेकर गया, मैंने पास्ट से प्रेजेंट से पास्ट, मैं इस प्रकार से अपने आप को चेंज करता रहा, मेरी पोजीशन मेरी माइंड की लोकेशन में बदलता रहा. एंड बैक अगेन, एक दुनिया से दूसरी दुनिया में मैं गया. पहले मैं पानीपत की लड़ाई को लेकर के कुछ दिमाग लगाने लगा, फिर उसके बाद मैंने ब्रिटिशर्स के बारे में, मुगल्स के बारे में सोचा कि यार पानीपत की लड़ाई में ये सब हुआ था तो ब्रिटिशर्स क्यों बचे रह गए. फिर मैं वर्तमान में जो समय में अभी जो देख रहा हूँ उसको मैंने कुछ वर्षों पहले के भारत से कुछ वर्षों पहले के समय से जोड़ा. तो कह रहा इस प्रकार से मेरा दिमाग एक युग से दूसरे युग अर्थात एक काल से दूसरे काल अर्थात एक स्थिति से दूसरी स्थिति में बदलता रहा और मैंने अपने आप को घुमाए रखा. फैंटास्टिक दो इट सीम्स, दिस इज द ओनली एक्सप्लेनेशन I can offer. Rajendra Deshpande told that he was totally right, and it was really a very fantastic, very fabulous, explanation. Since he also wanted to tell him that it was the only solution of his problem. My theory is that catastrophic situations offer radically, different alternatives for the world to proceed. It seems that so far as reality is concerned, all alternatives are viable, but the observer can experience only one of them at a time. While telling something more about that, the point, Rajendra Deshpande told him that my theory is that catastrophic means dangerous situations, offer radically different alternatives for the world to proceed. My theory is that catastrophic situations. So bete, in Hindi, first of all I would like to tell you the meaning of this statement in Hindi. My theory is, वो कहता है मेरा जो बताने का जो सिद्धांत वो यह है that catastrophic situations की जो खतरनाक स्थितियाँ जो उत्पन्न होती हैं, बेकार की जो स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, बहुत ही भयंकर जो स्थितियाँ जो उत्पन्न होती है, ऑफर रेडिकली डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, वो वास्तव में बहुत ही बेहतरीन तरीके के कुछ विकल्प भी व्यक्ति को प्रदान करती हैं. खतरनाक से खतरनाक जो स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं वो व्यक्ति को बेहतरीन किस्म के बहुत ही बढ़िया उनको विकल्प भी प्रदान करते हैं. टू अल्टरनेटिव फॉर द वर्ल्ड टू प्रोसीड, दुनिया को आगे बढ़ने के लिए, टू प्रोसीड का मतलब आगे बढ़ने के लिए, टू गो फॉरवर्ड, आगे बढ़ने के लिए, और विश्व के लोगों के लिए वो और बहुत सारे अच्छे विकल्पों का क्या करती हैं, विकल्पों को सामने रखती, विकल्प खोलती हैं. खतरनाक जो परिस्थितियाँ होती हैं वो व्यक्ति को कुछ ना कुछ करने के लिए आगे और नई दिशा देती हैं. इट सीम्स दैट सो फार एज रियलिटी इज कंसर्न, वो कहता है जहाँ तक की बात है वास्तविकता की, ऑल अल्टरनेटिव आर वाइबल बट द ऑब्जर्वर कैन एक्सपीरियंस ओनली वन ऑफ देम एट ए टाइम. वो कहता है कि सही मायने में देखा जाए तो जितने भी सारे अल्टरनेटिव होते हैं, विकल्प होते हैं, वो लगभग एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, बट द ऑब्जर्वर कैन एक्सपीरियंस ओनली वन ऑफ देम एट ए टाइम. लेकिन जो देखने वाला है उसको ये बात देखनी है कि वह वास्तव में उसको किस ढंग से ले रहा है, उस विकल्प को किस अंदाज में ले रहा है, उसका अपना विकल्प ढूंढने का जो तरीका है, उसका अपना विकल्प ढूंढने का जो अंदाज है, वो किस अंदाज में उस विकल्प को ले रहा है. यानी यहाँ इस पैसेज के माध्यम से उसने ये कहा है कि जो भी घटनाएं बेटा देश में घटित होती हैं, विश्व में घटित होती हैं, उन सभी घटनाओं को व्यक्ति को देखने का अंदाज क्या है, उसका व्हाट इज द पर्सपेक्टिव, व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ व्हाट इज ए पर्सन's एटीट्यूड towards that particular situation, particular incident, whether he takes that the particular situation
पॉजिटिवली और नेगेटिवली। वो ये कहता है कि इस बात के ऊपर विशेष रूप से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। बाई मेकिंग ए ट्रांजिशन यू आर एबल टू एक्सपीरियंस टू वर्ल्ड्स ऑल्दो वन एट ए टाइम। उसने कहा कि इस प्रकार का बदलाव करके ही आप एक बार में ही दो युगों की, एक बार में ही दो प्रकार की घटनाओं को, दो प्रकार की युग की घटनाओं को एक साथ जोड़ रहे थे। वन इज द हिस्ट्री वी नो, वो कहता है एक तो वह इतिहास जिस इतिहास के बारे में हम जानते हैं, द अदर अ डिफरेंट हिस्ट्री, और दूसरा वह इतिहास, उस युग का इतिहास जिस इतिहास के बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं, सिर्फ हमने पढ़ा है, हमने देखा नहीं है। द सेपरेशन और बाइफर्केशन दोनों का मीनिंग यही होता है बेटा, टुक प्लेस इन द बैटल ऑफ पानीपत। वो कहता है कि इन दोनों प्रकार की घटनाओं, इन दोनों प्रकार की जो स्थितियाँ हैं, दोनों प्रकार के युगों की जो स्थितियाँ हैं, वो हमने पानीपत की लड़ाई से, पानीपत की लड़ाई, ये जो बदलाव, ये जो अलगाव हुआ, ये जो बाइफर्केशन हुआ इन दोनों प्रकार की सिचुएशंस में, दोनों प्रकार के वर्ल्ड्स में, ये कहता है कि पानीपत की लड़ाई के युद्ध क्षेत्र में, ठीक है, देखने को मिला। कि एक बार देखा, जैसे देखा तुमने पानीपत की लड़ाई के युद्ध क्षेत्र में कैसे देखने को मिला बेटा, जरा जस्ट टेल मी। विश्वास राव को एक बार गोली लगी, नहीं गोली नहीं लगी, उसकी गोली लगने से बच गया तो युद्ध जीत गया, सब कुछ पॉजिटिव प्लस पॉइंट में चला गया। जब उसकी गोली लगी तो वह मर गया, और उसके मरने के बाद पूरी सेना का हौसला टूट गया और वह युद्ध हार गई। यू नीदर ट्रैवल टू द पास्ट नॉट टू द फ्यूचर। वो कहता है कि भाई देखो गंगाधर पंत जी, ना ही तो आप पास्ट में आपने अपने दिमाग से कहीं पर किसी बात को लेकर के आपने यात्रा की, ना ही आप भविष्य में गए। यू वर इन द प्रेजेंट, आप वर्तमान में थे, बट एक्सपीरियंसिंग ए डिफरेंट वर्ल्ड, लेकिन वर्तमान में रह करके एक आप अलग किस्म की दुनिया का अनुभव कर रहे थे। आप थे वर्तमान में, लेकिन आप बात कर रहे थे अपने दिमाग से पास्ट की और अपने दिमाग से प्रेजेंट की, फ्यूचर में। लेकिन आप खड़े हैं प्रेजेंट में और आप बात कर रहे हैं किसकी, पास्ट की, और आप बात करें फ्यूचर की। तो कहता है कि पास्ट और फ्यूचर जो है वो आपके बस में नहीं है। दीज द टू टाइम्स ओके आर नॉट इन योर हैंड्स। ये दोनों के दोनों समय काल जो है आपके हाथ में नहीं है, सिर्फ इनके बारे में आप कल्पना कर सकते हैं। ऑफ कोर्स बाय द सेम टोकन देयर मस्ट बी मैनी मोर डिफरेंट वर्ड्स अराइजिंग आउट ऑफ बाइफर्केशन एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। तो कहता है कि इसी प्रकार से फिर अलग अलग समय के अंदाज में व्यक्ति अलग अलग प्रकार के बहुत सारे परिस्थितियों का, बहुत सारे युगों का, बहुत सारे विश्व जो है, बहुत सारे विश्व का मतलब बहुत सारे अलग अलग घटनाओं का एक साथ में क्या करना शुरू कर देता, आकलन करना शुरू कर देता। उसके दिमाग से बहुत सारी चीज़ें अराइज आउट होने लग जाती हैं, बाहर निकलने लग जाती है, कम आउट। ओके, वो कहता है कि उसके अपने दिमाग से विभिन्न प्रकार की घटनाओं का आकलन होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए ये सब कल्पनाओं पर आधारित होती है, सिर्फ रियलिटी बेस्ड नहीं होती है। सो बेटे, now the last part is still left here, a very short part, and it will be attended by in the next lecture. Thank you.